Hello friends, let us continue with our lesson Human Health and Diseases. So what we have seen in my last lecture, we studied about the antigens on blood cells. Antigens that are responsible for our blood grouping. We have seen that there are 33 different types of blood grouping system like ABO, RH, MNS and all. Kidd, Duffy, okay. But in our regular practice, we follow two types of blood grouping, that is ABO and RH system. So for ABO type of the blood grouping, we have seen that on our RBCs, red blood cells which are circulating in our blood. So on our RBCs, some special kind of antigens are there. हमारे आरबीसी के सरफेस पर स्पेशल टाइप के एंटीजेंस होते हैं, ओके, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर ब्लड ग्रुप. Like if a type of antigen is there on my RBC, then my blood group will be A. B type antigen B. For any type of antigen on RBCs, corresponding antibody is present in their plasma. आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन है तो प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है? एंटीबॉडी प्रेजेंट है. सीरम में एंटीबॉडी है. ए ब्लड ग्रुप ए एंटीजन बी एंटीबॉडी. बी ब्लड ग्रुप बी एंटीजन ए एंटीबॉडी. याद करो, रिवाइज करो. ए बी ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन नो एंटीबॉडी. ओ ब्लड ग्रुप नो एंटीजन इज देयर ऑन आरबीसी सरफेस and antibodies, both small a and small b, both the antibodies are there in the plasma. Okay, then A can donate blood to A, okay, and AB. Blood donation या blood transfusion के वक्त we have to focus on antigen, and A can receive the blood from A and O. B can donate blood to B and AB and can receive the blood from B and O. AB can donate the blood to only AB but can accept the blood from A, B, AB and O. So it is universal acceptor. O can donate blood only to, O can accept blood only from O but can donate its blood to A, B, AB and O. So it is universal donor. Okay. Apart from that, we have studied the RH factor. First time found on the RBCs of rhesus monkey. That's why RH. So in RH factor, we studied that D antigen is there. So if apart from AB antigen and extra D antigen is present on your RBCs, then your blood is said to be RH positive. And if D antigen is not there on your RBCs, then your blood is said to be RH negative. Okay, RH negative cannot receive the blood from RH positive. RH positive वाला अगर RH negative को blood देगा मतलब अपना D antigen दे देगा, तो RH negative वाला क्या बनाएगा? D antibodies can form complex, the person can die. इसके एग्जाम्पल में आपको पढ़ाया था वन डिसीज, याद करो क्या नाम था डिसीज का? HDN. व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म? hemolytic disease of newborn or erythroblastosis fetalis, means RH negative mother is having RH positive fetus. First pregnancy will be normal without any complication. बट ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, जब इस चाइल्ड का बर्थ हो रहा है, जब उस बच्चे का जन्म हो रहा है, उस बच्चे के जन्म के वक्त में सम RH पॉजिटिव ब्लड कैन एंटर इनटू द मदर्स RH नेगेटिव ब्लड. एट दैट टाइम मदर्स ब्लड विल फॉर्म RH एंटीबॉडीज. ओके, उसी टाइम पे अगर मदर को इंजेक्शन दिया जाएगा एंटी RH एंटीबॉडीज का, देन अदर प्रेगनेंसीज विल ऑल्सो बी नॉर्मल. बट अगर ऐसा नहीं होता तो याद रखना कि पहले डिलीवरी के बाद मदर के ब्लड में डी एंटीबॉडीज है,
ये डी एंटीबॉडीज नेक्स्ट प्रेगनेंसी में अगर RH पॉजिटिव फीटस रहता है तो उसे पहले ही मार सकती है. ओके, सो दैट वी हैव स्टडीड इन माय लास्ट लेक्चर. टुडे इज द जनरलाइज्ड लेक्चर फॉर some terms because we have to start now the part of diseases. So in human health and disease, what we have studied till now is related with our immunity, our immune system, structure, functioning of our immune system and all. Okay, but here onwards we have to study different types of the diseases. अलग अलग diseases को हमें one by one पढ़ना है. तो आज कुछ हमें कंसेप्ट पढ़ने हैं, कुछ टर्म्स है आज हमें पढ़ना है यहाँ पर. So first term is disease. What is meant by the disease? So disease is the deranged functioning or defective functioning of any organ or many organs या फिर organ system. तो disease का मतलब क्या है कि आपका एक organ प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है या फिर बहुत सारे ऑर्गन इम्प्रॉपरली काम कर रहे हैं या फिर आपकी ऑर्गन सिस्टम इम्प्रॉपर तरीके से काम करती है. क्यों? बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव डाइट, इन्फेक्शन और हेरिडिटी. आपको जो भी डिसीज हो रहा है वो क्यों हो रहा है? एक तो आपको कुछ किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है या फिर आपने प्रॉपरली डाइट नहीं लिया है, डाइट में डेफिशिएंसीज की वजह से आपको कोई डिसीज हुआ है. सो एक तो डिफेक्टिव डाइट, ये एक रीजन रह सकता है. इन्फेक्शन, ये एक रीजन हो सकता है. या फिर हेरिडिटी, मतलब ये डिसीज आपको विरासत में मिला है, आपके पेरेंट्स ने उनके तरफ से डिसीज आपको दिया है. कभी हमने आज के पहले ऐसा पढ़ा है क्या कि आपके पेरेंट्स ने आपको डिसीज भेजा, कुछ इनहेरिटेंस? याद करो, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन, उस लेसन में कुछ दिया है. कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, प्लियोट्रॉपी, सिकल सेल एनीमिया, पढ़ा है हमने डिसीज के बारे में. ऑफ कोर्स यस, याद आना चाहिए. नहीं आता है तो बुक के पेजेस पलट के फिर से याद करो. ओके, सो डिसीजेस, डिसीज का मतलब क्या रहता है फिर? इट इज द एबनॉर्मल फंक्शनिंग और फिर डिरेंज्ड फंक्शनिंग या फिर डिफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ व्हाट? इट इज द डिफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑफ द ऑर्गन or many organs or complete organ system. So it is about the disease. Okay, then there are two categories of disease. ये जो disease है, disease की normally रहती है दो categories. एक रहता है congenital disease and दूसरे रहते हैं acquired disease. So diseases are having two categories. Congenital, इनबॉर्न भी हम उसे बोलेंगे, बाय बर्थ, जैसे हमने इनेट इम्यूनिटी पढ़ा था ना, बाय बर्थ रहती है आपके साथ. इन दैट वे अगर किसी पर्सन को, किसी बच्चे को इनबॉर्न बाय बर्थ कोई डिसीज है तो उसको बोलेंगे हम कॉन्जिनाइटल डिसीज. इट इज जनरली हेरिडिटरी टाइप ऑफ द डिसीज. ये आपको जेनेटिक मिला है या फिर इट कैन बी बिकॉज ऑफ सम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. ओके, सो कॉन्जिनाइटल डिसीज जो कि बाय बर्थ रहते हैं, इनका कारण जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो सकता है कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये डिसीज हुआ है, या फिर इनका दूसरा कारण रह सकता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. मेटाबॉलिक, आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एक तो वो कारण है. बाय बर्थ ही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपके पास में, आपके साथ, या फिर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी मतलब कोई जीन्स की हेराफेरी हो गई है बॉडी के अंदर में. जैसे याद करो, डाउन सिंड्रोम आपको पढ़ाया है, 21 ट्राइसोमी बोलते हैं उसे हम. 21 नंबर का क्रोमोसोम जिसमें एक्स्ट्रा रहता है, मेंटली रिटार्डेड बच्चा रहता है ये. डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर, याद है डिसीजेस, थैलेसीमिया, ये सारे डिसीज हम इसके पहले पढ़ चुके हैं क्लासरूम प्रोग्राम में. सो ये जो सारे डिसीजेस है, इनमें प्रॉब्लम कहाँ पर है? द प्रॉब्लम इज विथ यूर जीन, विथ यूर डीएनए. ओके, तो ये बाय बर्थ रहता है. सो कॉन्जिनाइटल डिसीज मतलब जो बाय बर्थ रहते हैं, वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम इन यूर डीएनए, इन यूर जीन. ओके, एंड अनदर इट कैन बी बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है. अनदर कैटेगरी इज ऑफ द एक्वायर्ड डिसीजेस. एक तो कॉन्जिनाइटल है और दूसरा है एक्वायर्ड. सो एक्वायर्ड का मतलब क्या रहता है? यू एक्वायर दिस डिसीज आफ्टर यूर बर्थ.
आपके बर्थ के बाद में आपने ये डिसीज एक्वायर किया है, आफ्टर बर्थ, जन्म होने के बाद ये डिसीज आपने एक्वायर किया है, उसे हम नाम देते हैं एक्वायर्ड डिसीजेस। आज, अभी, कभी, कल, परसों आपको इन्फेक्शन हो रहा है, उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड डिसीजेस। सो एक्वायर्ड डिसीजेस जो रहते हैं, जो आज हमें होने वाले हैं या हो सकते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। उन्हें भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज कम्युनिकेबल डिसीजेस, also called infectious diseases. Another is non-communicable disease or non-infectious disease. As the name suggests, नाम से आपको समझ में आता है, कम्युनिकेबल मतलब जो डिसीज एक से दूसरे को ट्रांसफर होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अभी मुझे ये आपको ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा, मेरे बताने से पहले ही आपके दिमाग में बहुत ही फिट बैठ गया है कम्युनिकेबल डिसीज। बताओ एक आधा एग्जाम्पल। कोरोना ऑफ कोर्स हम सबके दिमाग में, दिल दिमाग में पूरा घर करके बैठ गया है अभी फिलहाल तो आप नहीं भूल पाओगे उसे कभी भी थ्रू आउट योर लाइफ। कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिसीज बोलने से दिमाग में पहले अब कोरोना ही आने वाला है। ओके, so communicable disease, it can transfer from one to another person directly or indirectly. So let us take the example of corona itself. अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, अगर वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट स्नीज करता है, ओके, या फिर कफ करता है और आप उसके बाजू में खड़े हो, उसने जब छींका है, स्नीजिंग किया है या जब कफिंग किया है, तो जो ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे एयर में गए, वो ड्रॉपलेट्स अगर आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तो आपको हो गया इन्फेक्शन, ये हो गया डायरेक्ट ट्रांसफर। कोरोना पॉजिटिव इंसान जो है उसने अगर स्नीजिंग किया, उसके ड्रॉपलेट्स उसके हाथ पे गिरे हैं, वो हाथ उसने कोई भी एक इस मार्कर को लगा दिया, ये मार्कर बाद में मैंने मेरे हाथ में ले लिया, ओके, और फिर ये हाथ नोइंगली अननोइंगली मेरे नोज या माउथ के कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये ट्रांसफर कैसा हुआ है? इनडायरेक्टली। ओके, या फिर अब यहाँ पे हम कोरोना का एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे मलेरिया का। मलेरिया आप जानते हो मच्छर काटने से होता है। ओके, कल हम मलेरिया के साइकिल, मलेरिया के बारे में कल के लेक्चर में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो मलेरिया मतलब क्या, सिर्फ मॉस्किटो के बाइट से होता है क्या? मतलब अगर आपको रात में 2-3 मच्छर काटेंगे तो रोज सुबह उठ के आपको लगेगा कि अब मुझे मलेरिया हो रहा है? नॉट एट ऑल, ऑफ कोर्स। ओके, तो मलेरिया क्यों होता है? मच्छर ने काटा, दैट इज अनदर थिंग, बट जो मच्छर आपको काट रहा है उसके अंदर कुछ तो है, कुछ तो है मतलब भूत नहीं, उसके अंदर क्या है? प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट है। जिस मॉस्किटो ने आपको बाइट किया, उस मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट, यहाँ पे लिखा है देखो, प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट है। तो वो मॉस्किटो जब आपको बाइट करता है, एक्चुअली वो प्लाज्मोडियम आपके ब्लड में चला गया, इसीलिए आपको मलेरिया हो रहा है। तो हर एक मच्छर काटने से मलेरिया नहीं होगा, जब प्लाज्मोडियम वाला मच्छर आपको आकर काटेगा तब आपको क्या होगा? मलेरिया। ओके, मतलब प्लाज्मोडियम खुद चल के आपके पास आया नहीं, आप जाके उसको लेके आए, चल भाई मेरे घर पे कुछ दिनों के लिए, नहीं। ओके, तो प्लाज्मोडियम आप तक कैसे पहुंचा है? थ्रू मॉस्किटो। इसीलिए मॉस्किटो जो है, इसे हम क्या नाम देते हैं? वेक्टर। समझ में आया? तो ये जो कम्युनिकेबल डिसीज है या फिर इन्फेक्शियस डिसीज जो कि ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो इनमें बहुत बार हाथ रहता है वेक्टर का। तो वेक्टर का मतलब क्या है? इट इज अ पैथोजन कैरियर। वेक्टर मतलब कोई भी ऐसा इंसेक्ट, कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि पैथोजन को कैरी करता है, आप तक उस पैथोजन को पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है, ऐसे वाले मॉलिक्यूल को, पैथोजन को, ओके, इंसेक्ट को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल सकते हैं? वेक्टर। ओके, आप मॉस्किटो याद रखो, बस आपको उतना ही एक याद रखना है फिलहाल यहाँ पर। तो कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसीज मतलब विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये हो गया एक। दूसरा, सेकेंड एक्वायर्ड डिसीज में आता है नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। मतलब आपको हुआ है,
आप तक ही सीमित रहेगा, आपसे किसी दूसरे इंसान को नहीं जाएगा। कैंसर इज टोटली नॉन इन्फेक्शियस, अगर आपको हुआ है आप तक ही रहेगा। वेक्टर एंड ऑल, कोई भी किसी दूसरे इंसान तक ये डिसीज नहीं ले जा सकता। या फिर डिफेक्टिव डाइट की वजह से जो डिसीज रहता है, सपोज हम लेते हैं क्वाशियोरकर डिसीज, मैरास्मस डिसीज, ओके, ये सब डाइट डिफेक्टिव डिसऑर्डर्स है। ओके, आपको अगर प्रोटीन प्रॉपर आपके खाने में नहीं है या प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स विटामिन आपके खाने में नहीं है तो अलग अलग डिसीजेस होते हैं, बेरी, ओके, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। तो ये जो डाइट में डिफेक्टिव डाइट होने की वजह से या इम्प्रॉपर डाइट होने की वजह से डिसीज हो रहा है, वो सिर्फ आप तक ही सीमित है। ओके, और ये डिसीज किसी भी हालत में आपसे कहीं और या किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं होने वाला है, इंक्लूडिंग कैंसर। सो इट इज टोटली अ नॉन कम्युनिकेबल और इट कैन बी नॉन इन्फेक्शियस टाइप ऑफ द डिसीज। ओके, नाउ अब डिसीज कॉज करने वाला जो भी एक एजेंट होता है उसे हम बोलते हैं पैथोजन। जो आपको डिसीज कॉज करता है उसे हम क्या बोलते हैं नॉर्मली? पैथोजन। सो पैथोजन की कैटेगरी में आते हैं वायरसेस। अगेन कोरोना वायरस, कोविड-19 इज द लेटेस्ट एग्जाम्पल। फंगाई इन्फेक्शन कॉज करती है। ओके, जैसे बहुत बार कुछ दांत खाज खुजली वो एडवर्टाइज देखिए ना आपने, ऐसे ग्रेड पैच आ जाता है कहीं पर, रिंग वर्म भी बोलते हैं उसे, आगे है वो सिलेबस में पढ़ना है। So fungi can cause infection, viruses, bacteria can cause infection, helminth worm can cause a different infection। तो इन्फेक्शन कॉज करने वाला जो भी एजेंट है, इस एजेंट को हम क्या नाम देते हैं? पैथोजन। इन्फेक्शन कॉज करने वाला एजेंट मतलब पैथोजन, और इस पैथोजन को आप तक जो पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है दैट इज दी वेक्टर। कोरोना अगेन कोविड-19, उसका कोई वेक्टर नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छी बात, बुरी बात, अच्छी बात ही बोल सकते हो आप, वरना कोरोना पॉजिटिव वाले इंसान को और भी ध्यान रखना पड़ता। अभी तो उसके आइसोलेशन से काम चल रहा है फिलहाल, बट अगर कोरोना वेक्टर के थ्रू ट्रांसफर होता तो इमेजिन अगर हम कोरोना पॉजिटिव इंसान को क्वारंटाइन भी कर देते थे और उस क्वारंटाइन रूम में अगर जाके उसको एक आधा मच्छर काटता है और वो मच्छर बाद में कहीं से घूम फिर के नागपुर से वर्धा आके, यवतमाल से वर्धा आके, अमरावती से वर्धा आके, यही बोलना पड़ेगा ना, बिकॉज वी आर नाउ इन अ ग्रीन जोन। हमारे यहाँ पे तो कोई मच्छर नहीं मिलेगा आपको वैसा, पर नागपुर, यवतमाल, अमरावती, हमारे जो आजू बाजू में चारों तरफ बाकी के डिस्ट्रिक्ट है, वहां से अगर एक आधे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को काट के वो मच्छर आपके घर में आ जाएगा तो टेंशन मत लो, ऐसी कोई बात नहीं है, बिकॉज कोविड-19 का अब तक तो कोई वेक्टर प्रूव नहीं हुआ है, अब तक तो नहीं हुआ है एटलीस्ट। ओके, सो कमिंग ऑन द टॉपिक, सो मेनी पैथोजेंस आर देयर विच यूज डिफरेंट काइंड ऑफ द वेक्टर टू रीच एट यूर होम। ओके, आप तक पहुंचने के लिए वो अलग अलग वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और ये वेक्टर का मतलब रहता है पैथोजन कैरियर। अब ये जो वेक्टर रहता है वो छोटा सा इंसेक्ट रह सकता है, लाइक मॉस्किटो, या भी उससे भी छोटा कोई पैरासाइट रह सकता है। तो वेक्टर का मतलब क्या बोला मैंने अभी? पैरासाइट। पैरासाइट जो आपके बॉडी के ऊपर में फीड करते हैं और आपसे न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं। समझ में आया? पैरासाइट मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर इंसेक्ट जो आपके बॉडी के ऊपर या आपके बॉडी के अंदर फीड करेंगे। आपके बॉडी के ऊपर फीड करने वाला मतलब एक्टो पैरासाइट, लाइक मॉस्किटो, लाइक बेड बग, लाइक लाइसेस, डोक्यातला हुआ। ओके, सो दे आर दी एक्टो पैरासाइट। एक माझ्या डोक्यातला नाही, तुमच्या डोक्यातला. ऐसे टाइम पे क्लासेस की बहुत ही याद आती है. असं म्हटलं ना डोक्यातले हुआ वगैरे, तर तुम्हाला माहित आहे अशा मुली मुलं असं एकमेकांच्या डोक्याकडे बघायला लागतात, मग काहीतरी कॉमेडी होते, मग एक 5 मिनिटाकरता क्लासचं वातावरण छान मस्त बदलून जाते आणि आपल्या सगळ्यांना खूप मज्जा येते. बघूया ती मज्जा कधीपासून आपली परत चालू होईल. ओके, अगेन कमिंग ऑन द टॉपिक, ऐसा ही बोलना पड़ता है फिर उस वक्त में. सो एक्टोपैरासाइट मीन्स जो आपकी बॉडी के ऊपर फीड करता है. मॉस्किटो, बेड बग्स आर दे. सो एक्टोपैरासाइट वेक्टर हो सकता है जो कोई पैथोजन को आप तक पहुंचा दे, या फिर
पैरासाइट दूसरा रहता है एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट, एंडो एंडो आपको नाम से समझ में आ रहा है, एक्टो जैसे बॉडी के सरफेस पे रहने वाला, वैसे ही एंडो बॉडी के अंदर रहने वाला मतलब एंडो। ओके, सो एंडो पैरासाइट में आता है एस्कॅरिज। लहानपणी पोटामध्ये किरम वगैरे झाले असतील ना, आताही होतात म्हणा, त्यात काय मोठी गोष्ट आहे। ओके, तो ये जो पेट में किरम वगैरह जो होते हैं, दे इट इज दी मतलब नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द वर्म एस्कैरिज। एस्कैरिज भी आगे हम पढ़ने वाले हैं अभी 1-2 दिन में। सो एस्कैरिज आपके स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, एंडो पैरासाइट। प्लाज्मोडियम अभी अभी हमने पढ़ा, मलेरिया मॉस्किटो के काटने से होगा, पर मच्छर रिस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं, वो तो बेचारा अपना खाना खाने आया आपके पास में, आपका खून चूसने आया, बट उसके ही अंदर प्लाज्मोडियम था जो आपके अंदर चला गया है। ओके, सो प्लाज्मोडियम किसने आप तक पहुंचाया है आप तक? मॉस्किटो। मॉस्किटो इज द पैरासाइट, इट इज द वेक्टर। सो मोस्ट ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का मतलब हमने पढ़ा जो पैथोजन को कैरी करते हैं वो। सो मोस्ट ऑफ द वेक्टर्स आर नथिंग बट द पैरासाइट। 2 टाइप के हैं ये, एक तो बॉडी के सरफेस पे फीड करने वाले, एंडो बॉडी के अंदर फीड करने वाले पैरासाइट। सो लेट अस रिवाइज अगेन, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था आज का, हमने अलग अलग टर्म्स के बारे में पढ़ा है। एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट फर्स्ट स्टडिंग मलेरिया। मलेरिया से आगे एक एक 1 by 1 डिसीज हमें कल से पढ़ते जाना है आगे। तो आज की हमारी सबसे पहली वाली टर्म कौन सी थी? डिसीज। व्हाट इज डिसीज? रीड, रिवाइज एंड लर्न विथ मी। व्हाट इज मीन बाय डिसीज? इट इज द डिस्टर्ब और डिरेंज फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। अगेन फिर से रिपीट करो, व्हाट इज मीन बाय डिसीज? इट इज द डिस्टर्ब और डिरेंज फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। बॉडी का एक ऑर्गन, एक से ज्यादा ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम का डिफेक्टिव हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना या फिर उसके फंक्शन का एबनॉर्मल हो जाना, इसे हम बोलते हैं डिसीज कंडीशन। डिसीजेस को हम क्लासिफाई करते हैं मेनली इनटू द 2 कैटेगरीज। यस, दी 2 कैटेगरीज आर कॉन्जिनाइटल एंड एक्वायर्ड। व्हाट इज कॉन्जिनाइटल? कॉन्जिनाइटल मीन्स बाय बर्थ, इनबॉर्न। आपके साथ जो डिसीज है वो कॉन्जिनाइटल। किस वजह से होगा कॉन्जिनाइटल डिसीज? इट कैन बी ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, जेनेटिकली वो पर्सन वीक है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी इज देयर, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कुछ एंजाइमेटिक या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जीन्स में प्रॉब्लम हो सकता है, तो हो सकता है कॉन्जिनाइटल डिसीज। सेकेंड, एक्वायर्ड डिसीज। एक्वायर्ड डिसीज मीन्स जो आफ्टर बर्थ होता है, आफ्टर बर्थ जो डिसीज होगा, जो इन्फेक्शन होगा, इट इज दी एक्वायर्ड डिसीज। एक्वायर्ड डिसीज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, one communicable or infectious, another non-communicable or non-infectious disease. Non-communicable, non-infectious means anyhow in any condition it cannot be transferred from one to another person, एक से दूसरे की तरफ ये नहीं जाने वाला, like cancer. Communicable, infectious disease, it will transfer from one to another person. अब ये जो इन्फेक्शियस डिसीज है वो कॉज करने वाला जो भी पैथोजन है, इन पैथोजन के कैटेगरी में कौन कौन आता है? सो कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस, फंगाई, बैक्टीरिया, हेलमिंथ, वर्म। वर्म मैंने अभी आपको एस्कैरिज का एग्जांपल बताया था। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ दी पैथोजेंस, और ये पैथोजेंस बहुत बार आपके बॉडी तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार रहते हैं वेक्टर, नॉट ऑलवेज, बहुत बार। इन मेनी केसेस वेक्टर्स आर देयर। So vectors are insect which are pathogen carrier. इंसेक्ट है ये जो पैथोजन कैरियर है, उसको हम बोलेंगे वेक्टर। ओके, तो ये वेक्टर आप तक क्यों, आपके पास में क्यों आते हैं? उनको किसने पैसे दिए हैं? जाओ जैसे मेरा लेटर पोस्ट करके आओ, नहीं। तो वेक्टर आपके पास में क्यों आता है? बिकॉज द वेक्टर इज एक्चुअली पैरासाइट। ये वेक्टर पैरासाइट है, इसीलिए आपके पास में आता है। आपसे उसको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। 2 टाइप्स ऑफ पैरासाइट आर देयर जो आपके बॉडी पर फीड करते हैं या बॉडी के अंदर। एक्टो पैरासाइट फीड ऑन यूर बॉडी सरफेस, बेड बग, मॉस्किटो। एंडो पैरासाइट फीड इनसाइड यूर बॉडी सरफेस, एस्कैरिज एंड प्लाज्मोडियम। So it is all for today's lecture, and tomorrow we will start with malaria. Okay, till then, bye.